So, hello everyone, welcome all to Dr. MDS Academy. From today, I am going to start theory of machine subject. So, before starting any chapter, I am going to show you what are the different chapters we will be covering in this theory of machines. First is kinematics of machine, then next will be flywheel and governors, followed by toothed hearing, and then after mechanical vibrations. So one by one we are going to go through all these chapters. So in first chapters we have to understand what are the different links and what are the different modes of finding out the degree of freedom. So using the Goodbat criterion, and what are the in what conditions double crank, double rocker will happen in any kinematic chain, kinematic links chain. What is that? Kinematic pair is what? Kinematic chain is then finally. So to obtain the constraint or successfully constrained motion, what are the different criteria? Those we understands. Along with that, we have to aware of that how to find out the degree of freedom, or in other word, what is the mobility of any kinematic chain. Okay, Kruger criteria, then it is inversion of mechanism. So based on the inversion of mechanism, we have to different cases we are having, different examples are there. So we have to memorize all those things, understand also with the help of diagrams. So this is a long chapter, so I'm going to divide these chapters into four parts. So let's just begin from the solving the gate question number one. So what is question is saying, a rod of length 1 meter. This 1 meter length rod is sliding in a corner as shown in the figure. At an instant when the rod makes an angle 60 degree, okay, this is 60 degree with the horizontal plane, the velocity of point A on the rod is 1 meter per second. The angular velocity of the rod at this instant is, okay, omega we have to find out. See what is saying is this is our vertical and this is our horizontal axis. Okay, now we are having a rod here. So we are having a rod, say, of this much. Okay, this is our rod. Okay, now this rod is having length 1 meter. This is given 1 meter. Okay, and here this is point A and this is given B. This angle given is how much? 60 degree. Okay, this is the perpendicular to was two supports. Okay, so velocity at A is given 1 meter in the downward directions, means in these directions. Okay, so can we write like this? Va is equal to 1 meter per second moving downward. Okay, so if this rod is, since this rod is what, solid now, so it is moving downwards, definitely the point B will move somewhere like this. The velocity of point B will be moving right side. When the velocity at point A is moving down, then this whole rod AB will move right side. Okay, so I think, is it clear? Now what is saying is angular velocity निकालना है मेरे को EB का, रॉड का.
ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू इज व्हाट, ठीक है। सी, एक फंडामेंटल कंसेप्ट ले, एक मेरे पास रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के से एक लाइन है, ठीक है, इसी के ऊपर में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस पॉइंट इज बी, ठीक, से एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस रिजिड बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से घुमा रहे हैं, है ना। तो पॉइंट ई पर सपोज मेरे पास एक वेलोसिटी दे रहा है ए पॉइंट पर, मतलब ए पर जो इस रिजिड बॉडी का ए पॉइंट पर एक मॉलिक्यूल्स है जो कि कुछ इस तरीके से राइट साइड में मूव कर, बी पॉइंट पे भी मॉलिक्यूल्स रोटेट करेगा ना ओमेगा के कारण। सपोज मानते हैं कि ऐसे रोटेट कर, ठीक है, बी बी लाइक दिस, ठीक है। लेट्स से BA is making angle alpha, okay, let's say this is our, and the BB is making angle beta, okay। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो V is equal to ओमेगा इंटू आर, वी नो दैट, ठीक है। यहाँ ओमेगा कांस्टेंट होगा, ओमेगा A is equal to ओमेगा B, क्यों होगा, why, because body is rigid, body is rigid, और सिंपल लैंग्वेज में बॉडी इज सिंगल, ठीक है, एक ही तो लिंक है, एक ही तो बॉडी है ना। तो जो ई पर ओमेगा होगा, मॉलिक्यूल्स ओमेगा से रेडियन पर सेकंड से रोटेट करेगा, ए पर भी वही होगा, ठीक है। तो कैन आई राइट लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, वी ए अपॉन आर ए, आर क्या है देखते हैं अभी, आर बी, है ना। तो वी ए मतलब ये वेलोसिटी हो, इस वेलोसिटी वी ए, ये तो डाउट नहीं होना, वी बी ये वाला वेलोसिटी, है ना, ये। अब आर ए क्या है, आर ए हमेशा ध्यान में रखना है रेडियस है, यानी कि इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब देखो इसके जस्ट परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ कर, है ना, किसके परपेंडिकुलर में, बी ए के परपेंडिकुलर में एक डॉटेड लाइन, ठीक है। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे, ठीक है, जो कि इससे BB से परपेंडिकुलर, जैसे VA से परपेंडिकुलर हुआ ये डॉट लाइन, तो इसी तरीके से VB से परपेंडिकुलर हुआ ये डॉट लाइन, ठीक। इस पॉइंट को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, जहां मीट करेगा, ठीक। अब आर ए को समझते हैं, आर ए क्या है, ए पॉइंट पर ना, ए पॉइंट से लेकर आई तक का डिस्टेंस, ए पॉइंट से लेकर आई तक का डिस्टेंस आर ए, आर ए। एंड व्हाट इज आर बी, पी पॉइंट से लेकर आई तक का डिस्टेंस, पी पॉइंट से लेकर आई तक, ठीक, लाइक दिस, ये हो गया, ठीक, और ये दूसरा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज आर बी, ये काइनेमेटिक्स मशीन में हमेशा ध्यान में रखना है, ओके। द सेम concept I will be using in this question also. Since omega is constant now for the single body, it's our single body na, rigid body, AB is rigid. So can I write like this? VA upon RA is equal to VB upon RB, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। V अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ही तो होगा,
जो ओमेगा ए होगा, यानी कि हियर ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी ना, ओके। ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी बिकॉज द बॉडी इज रिजिड और द बॉडी इज सिंगल आल्सो, ओके। कोई दो बॉडी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। वी ए कितना है, वी ए कितना है, 1 दे रखा है। आर ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो आर ए आई हो गया। अब देखो बी ए के परपेंडिकुलर में, जैसे ये सेम कंसेप्ट आई बी यूजिंग हियर, परपेंडिकुलर ना ड्रॉ किए थे ना दिस वन बी ए के, यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ हो सकता है, ऐसे ड्रॉ हो सकता है, दिस परपेंडिकुलर, ये डॉट हो गया, है ना। और यहाँ वी बी के परपेंडिकुलर कैसे होगा, ये वाला होगा, ये मीट किया क्या, यानी ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करते हैं, ये परपेंडिकुलर हुआ। तो कैन आई राइट हियर बी ए अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, ए पर जो एलिमेंट है, ठीक है, ए से लेकर आई तक का डिस्टेंस, ए से लेकर आई तक का डिस्टेंस सेम यही है, इज इक्वल टू वी बी, बी से लेकर, बी से लेकर आई तक का डिस्टेंस, ठीक, आई तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। हमें ओमेगा ही तो निकालना है क्वेश्चन। बी ए हाउ मच गिवन, 1, this given na 1 meter per second, a to I distance is how much, a to I distance is how much, this distance is how much, ठीक है। इस इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। यदि ये 60 है, दिस 60, ये भी तो 60 होगा, ओके। तो ये वाला ए आई डिस्टेंस इज हाउ मच, यहाँ पर cos थीटा लगाते हैं, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है, ए आई है, हाइपोटेनियस क्या है, ए बी है, ए बी, ठीक है। यानी ए आई क्या है, ए आई तो निकालना है मेरे को, ए बी कितना है, 1 है, 1 मीटर गिवन ना, 1। तो यहाँ पर ए आई इक्वल टू क्या निकलेगा, ए आई विल बी इक्वल टू, ए आई इक्वल टू 1 इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 √3/2, 1/2, ठीक है, 1/2। सो ए आई इवेंट इज 1/2, है ना, इज इक्वल टू बी बी अपॉन बी आई ई इज इक्वल टू ओमेगा, हमें ओमेगा चाहिए, तो डायरेक्ट वी विल बी यूजिंग these two terms, so omega coming is 2, okay। So this is in radian per second as we are using all the SI unit. Answer is what, 2 radian per second. The answer will be our 2 radian per second, okay। So by this fundamental concept we will be solving such question. Now let's see the question number 2, ठीक। चलो क्या बोल रहा है, इन द फिगर shown the relative velocity of link 1, this is link 1, with respect to link 2 is, okay, 12 meter per second. Link 2 rotates at a constant speed of 120 rpm. This 2 is rotating at 120 rpm, okay। हालांकि ये n दे रखा है, not given n, omega is not given। The magnitude of the Colossus component of the acceleration of the link 1 is how much? See, देखो पहले ही देख समझते हैं Colossus, ठीक है। Colossus component of link B with respect to C point, टेंजेंशियल होता है Colossus component of acceleration of slider B with respect to the constant point C, Colossus component C, okay, is equal to 2 omega into V, okay। ये क्या होता है,
सपोज मेरे पास एक ओ ए सॉलिड रॉड है जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। मेरे पास एक स्लाइडर क्या है, एक स्लाइडर है, ठीक है। दिस स्लाइडर नेम इज बी, ओके, एंड पॉइंट at which this slider B is coincident on OA link is at C, okay। तो यदि मेरे पास ये स्लाइडर का वेलोसिटी है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये होगा क्या, 2 ओमेगा इंटू वी, ये है क्या, कोलोसिस एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट क्या है ओमेगा का, रेडियन पर सेकेंड, ओके। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है क्या, एक्सेलरेशन ही तो है, एक्सेलरेशन ही तो है, ओके। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट, दिस इज आवर एक्सेलरेशन expression, okay। So this is Colossus component of acceleration is what, the tangential component of slider B. It is the tangential component of acceleration of slider B with respect to the constant point C, okay। This is our slider, this is our link, okay। So omega क्या है, omega is the angular velocity of link OA, okay। And what is V? V is the linear velocity of slider B, okay, B with respect to, okay, with respect to point C, okay। तो दिस इज द, यदि मैं 2 ओमेगा इंटू वी करेंगे तो ये हो गया कोलोसिस कंपोनेंट ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ स्लाइडर बी विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट सी, के जो कि टेंजेंशियल होता है, ओके। हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। कर्लोसिस एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑफ स्लाइडर बी विथ रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट पॉइंट, सपोज बी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सी हो गया, कोई सी पॉइंट ले लो, सी, ठीक है, जो टेंशियल, या कभी कभी हमें इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी बुक में, 2 ओमेगा इंटू बी। सो 2:2 ओमेगा, रेडियन पर सेकंड में दे रखा है, कुछ डेटा नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई n/60 इंटू वेलोसिटी। इस स्लाइडर का कुछ दे रखा है क्या, स्लाइडर का वेलोसिटी कुछ दे रखा है क्या, वी वेलोसिटी दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑफ लिंक वन, वन, वन क्या है, स्लाइडर ही तो है, स्लाइडर, ठीक है, वन। नाउ 2 into 2 pi n how much given, 120 upon 60 into 1, sorry, this is given 12 na, 12, okay, like this calculation, 12 5 ja 60, 5 2 ja 10, 5 4 ja 20, ठीक है। now calculation,
क्या आएगा, 2 इंटू टू, ओके, इंटू पाई, ठीक, शिफ्ट पाई इंटू 24 ना, 24। तो हमारा इंजीनियरिंग 301, 301.59, 301.59, ये किस में स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। our answer 301 close to that. The answer will be our A, है ना। So by this we can solve the question based on the Coriolis component of acceleration. Now let's next question. Okay, the important question. Gate question number 3 asked in 2007. So based on this concept, several numericals have been asked in the engineering service exam also. Okay, in the university paper also. Okay, so let's solve this question. The input link O2P, okay, of a 4 bar linkage is rotated at 2 radian per second in counterclockwise direction, ठीक है। This is given omega, ठीक है, this is given omega 2 radian per second. The angular velocity of the coupler PQ इसका, है ना, in radian per second at an instant when O2 O4 O2 P is 180 डिग्री। देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये एक लिंक है O2 O4, है ना, ऐसे दे रखा है, ये है, this is our O2, this is our O4, okay, and this link given is P, okay, and कुछ ऐसा है और ऐसा, है ना, ऐसा, ये Q है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये ओमेगा से सेपरेट कर, लेट्स से दिस इज आवर लिंक 1, this is our link 1, and this is 2, this is 3, and this is our 4 link, okay। so 4 bar kinematic chains are given। इस कंडीशन के लिए हमें एंगुलर वेलोसिटी pq के लिए चाहिए, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको हम लोग कैंडिस थ्योरम यूज करेंगे, मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये जब एंगल 180 डिग्री होगा तो कुछ इस तरीके, है ना, O2 O4, है ना, ये जब ऐसे हो रहा है ना, ये P हो गया, दिस इज नाउ 180 डिग्री, है ना, इसी कंडीशन के लिए ये हो जाएगा ऐसे, Q हो गया और ये ऐसे, है ना, ये लिंक 4 था, लिंक 3 था, and now this is our link 2 and this was our link 1, okay। now यहाँ पर हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर का नेमिंग भी यार 1 2, ओके, पहला शॉर्ट स्मॉल नंबर आएगा, देन आफ्टर बिगर नंबर, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल नंबर 3, मतलब कि ये ज्वाइंट क्या होगा, 2 और 3 से कनेक्ट है, तो छोटा नंबर 2 और देन आफ्टर बिगर नंबर। नाउ अगेन वी विल नेम this point instantaneous center is
3 4, small number bigger number. Again this point is connected with link 1 and 4 na, so smaller number then bigger number. Okay, so how many instantaneous centers we are having here? So we can check from this formula, n minus 1 divided by 2. This is what number of instantaneous center. What is a small n here? Small n is the number of links. How many links we are having? 1 2 3 4. So 4 bracket 4 minus 1 divided by 2. So this is 2 into 3. Total 6 we are getting the instantaneous center. But currently we are having only, we have assigned only 4 1. This is I1 to 1 2 3 and 4. Where are the remaining 2? 4 तो हम लोग कर दिए, लेकिन हमें कितना ढूंढना है? टोटल 6 चाहिए, है ना? टोटल हमें क्या चाहिए? 6 चाहिए। तो बाकी का रिमेनिंग हम लोग क्या करेंगे? यूज कैंडी थ्योरम, है ना? क्या बोलता है कैंडी थ्योरम? थोड़ा सा समझते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करो, है ना? वहां एक पॉइंट दो 1, है ना? क्या पॉइंट दे? 1। ये 1 क्या है? एक लिंक है ना? ध्यान रखो, पॉइंट को लिंक बोलेंगे। ये जो 1 है, दिस 1 इज हियर इन कैंडी थ्योरम इज 1. पॉइंट 2 इज अनदर लिंक 2 हियर. दिस पूरे लिंक को हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, पॉइंट 3, ओके, एक तीसरा लिंक है, इतना बड़ा P से Q जो है एक लिंक है जो कि पॉइंट से रिप्रेजेंट, और 4 हो गया यहाँ पर एक चौथा लिंक. दिस फोर्थ लिंक वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर with point. Okay, now connect all those. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1. ठीक है, कुछ इस तरीके का हमें बॉक्स मिलेगा. ठीक है, अब देखो 1 क्या मैं बताया था? एक लिंक है. 2 क्या है? एक दूसरा लिंक है. 3 क्या है? ये 3 पॉइंट क्या है? एक लिंक PQ है. 4 क्या है? एक चौथा लिंक है. ठीक, अब I12 देखो यहाँ पर I12 है ना, इंस्टेंटेनियस सेंटर. यहाँ पॉइंट को लिंक बोल रहा था कैंडी थ्योरम. ठीक है, अब लाइन यहाँ पर पॉइंट बनेगा. ठीक है, जस्ट अपोजिट, कीप इट इन माइंड. ओके, पॉइंट कैंडी थ्योरम में 1 को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक लिंक से. अब 1 से 2 एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस सेंटर. I12 कर दिए हम लोग, I23 ये भी कर दिए, I34 ये भी कर दिए, I41 ये भी कर दिए. ठीक है, हम लोग ये सब करते आ रहे हैं. ठीक है, हमें क्या, लेकिन हमें ये 4 मिल गया, है ना? 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला इंस्टेंट. ठीक है, लेकिन मेरे को 2 और चाहिए. तो 2 और जानने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? डॉट लाइन हमें. ठीक है, कैसे? डायगोनल लाइन ड्रॉ करो. ठीक है, डायगोनल लाइन कनेक्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर देखो, हमें I13 जानने के लिए, अब लाइन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंस्टेंटेनियस सेंटर. जैसे I12 था ना, ये I12 एक इंस्टेंटेनियस सेंटर था, वैसे ही I13 अब नया मिलेगा, और एक और मिलेगा I24. ठीक है, तो टोटल हो गया 6, बन गया मेरा पास टोटल 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर आ गया. I13 मिलेगा कैसे?
ये दोनों ट्राइंगल्स मिलेगा, ये वाला, है ना, I12, I12, ठीक है, I23, ठीक है, एंड इस ट्राइंगल में और इस डॉटेड लाइन के नीचे देखो, ये वाला, मतलब एक ये ट्राइंगल देखेंगे, एक ये ट्राइंगल, I13 निकालने के लिए, ठीक है। एक तो I12 से आएगा, I23 से आएगा, ठीक है। एक दूसरा ट्राइंगल I14, छोटा वाला डिजिट हमेशा इस पहले आएगा, बड़ा वाला बाद में आएगा, ठीक है। I14, I34 होगा, I34, ठीक है, ना कि 43 होगा। इन दोनों से आ रहा है हमें I1, देखते हैं डायग्राम में, है ना। I13, I12 और 23, I12 और 23, लेकिन इस पोजीशन के लिए चाहिए तो डायरेक्ट मैं इसी को सॉल्व करता हूँ, है ना। हाँ, I12 और 23, I12 सबका नेमिंग दे देते हैं, I12, I P पर क्या था, 23, 23, I23 और I34, I14, ठीक है। अब देखो I13 लाने के लिए 12 और 23 को खोजो, I12 ये आ गया और 23, मतलब ये वाला लाइन का यूज कर, है ना, इस वाले से। अब दूसरा है I14 और 34, I14 और 34, ये वाला लाइन को यूज करें। अब देखो इसको ऐसे लाओ, यहाँ आ रहा है, इसको ऐसे लाओ, एक्सटेंड करो, यहाँ मीट कर रहा है, मतलब ये लाइन और ये लाइन ऐसे एक्सटेंड करना है कि ये दोनों आपस में मिले, ठीक, तो ये यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो यहीं पर जाकर हमें क्या मिल रहा है, I13 मिल रहा है, यहीं पर I14 के ऊपर में कोइंसाइड हो रहा है I13, ओके। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट, है ना, ऐसे था, ठीक है, I13 निकल गया। अब मैं ऐसे ड्रॉ, एक और लास्ट जो मेरा बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ है ना, 1 2 3 4, और ये 5 इंस्टेंटेनियस, फिर तो एक और निकालना 6। अब I24 निकालने के लिए ये कैसे निकालेंगे, एक ट्राइंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल नीचे वाला बन रहा है, ऐसे वाला, ठीक है। तो I24 इस डायगोनल को निकालने के लिए I14, छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में डिजिट, I12, वाला ट्राइंगल खत्म, है ना, और नीचे वाला ट्राइंगल में 23, I23 और I3, है ना। तो ये अब करते हैं यहाँ, अब देखो यहाँ पर I24, I24 क्या है, I24 कहाँ पर है, वो निकालना है ना, I14 और 12, I14 और 12, ठीक है। दूसरा कलर लेते हैं, हाँ, 14 और 12, 14 तो ये मिल गया, है ना, 14 ये, दिस वन, ओके। हाँ, 14 ये मिल गया, और 12, 14 और 12, मतलब कि ये वाला लाइन का हमें यूज करना है, कौन सा, 14 और 12, इस वाले लाइन का यूज, है ना। दूसरा क्या हो गया, ये हो गया 2 3 और 3 4, 2 3, 2 3 और 3 4, ये वाला लाइन का यूज करना है। ये लाइन को ऐसे ड्रॉ करो, है ना, और ये लाइन को ऐसे एक्सटेंड करो, ये दोनों आपस में मिलेगा, कहाँ मिल रहा है, ऐसे जाने से तो मिल नहीं रहा है, ऐसे जाने से तो मिल नहीं रहा है ना, कभी मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा, रिवर्स करो इसको, इसको ऐसे ले गए तो ऐसे ले गए तो यहाँ मिल रहा है ना।
तो ये 2 3 के ऊपर ही कोइंसाइड कर रहा है। कौन? आई। इतना करने के बाद हमें आराम से मिल जाएगा जो बोल रहा है। हमें बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कपलर पी क्यू, यानी कि हमें ये वाला दे रखा है, दिस वन गिवन ओमेगा 2 है ना, ओमेगा 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 रेडियन पर सेकेंड। O2P दे रखा है ना, O2P 2 रेडियन पर सेकेंड। हमें क्या पूछ रहा है? ये वाला ओमेगा 3 बोल रहा है निकालने के लिए, है ना, इस कंडीशन के लिए, है ना, इस कंडीशन के। तो हमेशा काइनेटिक सब मशीन, ठीक है, ये वाला चीज ध्यान रखो। ओमेगा 3 बोल रहा है निकालने के लिए, हमें ओमेगा 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। देखो 2 और 3 हमें ऐसे करना है। देखो फॉर्मूला ऐसे बनता है, ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 2, है ना, ऐसे आई 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 आई, ध्यान से देखना, 3 2, ठीक है, 3 2, है ना। आई क्या है? इंस्टेंटेनियस है। यहाँ पर देखो 3 2 हो गया, ये जो 2 है दोनों में लगा दो, 2 2, है ना। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 1 होगा, और और ये जो होगा 3 ऊपर वाला में यहाँ लगा, ठीक है। 1 का 1 लगाएंगे और ये 3 का, इस तरीके, ठीक है, फॉर्मूला यूज कर, ठीक है। एक तो ये हो गया। जैसे कोई पूछेगा ओमेगा 9 अपॉन ओमेगा 5 करो, है ना, ऐसे करने के लिए क्या करेंगे? ये रेशियो है दे रखा है 9, ये 9 है 9 कर दो, 5 है 5 कर दो, ठीक है। नीचे वाला 5 है, 5 5 करो, ठीक है। यहाँ 1 बाय डिफॉल्ट रहेगा और ये जो होगा 9, है ना, 9 का 9 रहेगा। अब बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा और 9 का, है ना, सेम चीज। कोई बोलेगा कि नहीं भाई मेरे को चाहिए ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा से 6, ठीक है, मतलब थर्ड लिंक का एंगुलर वेलोसिटी और सिक्स लिंक का एंगुलर वेलोसिटी। तो कैसे करेंगे? आई 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 आई, है ना, 3 6 है, 3 करो यहाँ, 6 यहाँ करो, 6 यहाँ पर है, ठीक है, 6 6 दोनों में करो, है ना। 3 बाई डी 3 है ना, यहाँ 3 यूज करेंगे। 1 3 है, यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 3 मैं क्या बोला था, छोटा वाला टर्म पहले लिखो, तो पहले लिख दो यहाँ, ठीक है। 3 या बाय डिफॉल्ट 1 होगा, है ना, 3 का 3 कर दो, है ना, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन इजिली क्रिएट ए फॉर्मूला, ओके। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन। हाँ, तो मेरे पास ओमेगा 3 बोला है निकालने के लिए, ओमेगा 2 गिवन इज हाउ मच, ओमेगा 2 गिवन इज हाउ मच, दिस इज गिवन 2, ओके। अब बोल रहा I12 से लेकर 23 का डिस्टेंस कितना है? I12 है क्या? I12 है क्या? दिस पॉइंट, है ना, विच पॉइंट? दिस पॉइंट, है ना। I12 कहाँ तक जाना है? 23 तक जाना है, I23। ये डिस्टेंस कितना है? ये तो डिस्टेंस है। O2 से लेके P तक का डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, O2 से लेके P तक का डिस्टेंस, O2 से लेके P तक का डिस्टेंस, ये वाला, ये दे रखा है क्या? है ना, नहीं करेंगे, ये कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बोल रहा है 13 से लेकर 23 का डिस्टेंस, 13 से लेकर 23 तक का डिस्टेंस, 13 ये हो गया ना, 13 से लेकर 23 तक का डिस्टेंस, मतलब ये वाला पूरा,
है ना। कितना दे रखा, 1 3 से 2 3, मतलब O4 से लेकर P तक का डिस्टेंस, O4 से लेकर P तक का डिस्टेंस, O4 से लेकर P तक का डिस्टेंस, हाउ मच गिवन। ये O2 O4 दे रखा है ना, O2 O4, ये भी दिया, ये भी ए है, ये भी ए है ना। O2 से लेके P तक का डिस्टेंस A+A 2, है ना। यहाँ A+A, ये ए है ना, है ना। ये कितना होगा, 2A हो गया ना। यदि ये ए है ना, ये भी ए है ना, गिवन ना इन द क्वेश्चन, ये हो गया 1/2 हो गया, ये कैंसिल। O3 is how much, O3/2 equal to 1/2, so this is cancelling, so O3 coming is 1 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो आंसर है, यस है, 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। So this is how you can solve the complex questions, okay, in easy way by using this gun. Now next question, for the 4 bar linkage, ठीक है, 4 बार दे रखा है, shown in the figure, the angular velocity of link AB is 1 रेडियन। AB का कुछ इस तरीके का है डायग्राम, if you are not, if it is not visible, I am redrawing this figure, this is our fixed link, okay. So this is point A, point B, point C, and this is our point D, okay. For a 4 bar linkage shown in the figure, the angular velocity of link AB is 1 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है यहाँ पर, कुछ इस तरीके का 1 रेडियन पर सेकेंड। द लेंथ ऑफ लिंक CD, ठीक है, CD का लेंथ दे रखा है, ओके, गिवन CD is equal to 1.5 times, CD is 1.5 times the length of AB, ये दे रखा है। In the configuration shown, the angular velocity of link CD का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, यदि ये ऐसे घूम रहा है, ये भी तो ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सेम कंसेप्ट व्हाट यू हैड यूज अर्लियर, ठीक है। यदि ये लिंक 1 है, लिंक 2 है, लिंक 3 है, लिंक 4 है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक CD यानी कि ये वाला ओमेगा 4 पूछा है ना, एंड ओमेगा 2 इज गिवन 1 रेडियन per second. This is our what, for angular velocity of link 2, ठीक है। दिस इज गिवन। अब रेशियो निकालो इन दोनों का, क्या बताया था, ओमेगा 4/ओमेगा 2, है ना, इज इक्वल टू आई 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 आई, ठीक है। 4 2 ये दोनों का यूज करेंगे, 4 2, है ना। अब यहाँ 2 का यूज करेंगे, 2 2, है ना। अब यहाँ करेंगे बाय डिफॉल्ट 1 आएगा, ठीक है। और ये वाला यूज करेंगे, ऊपर वाला बाय डिफॉल्ट 1 आएगा और ऊपर, ठीक है। कोई बोलता है कि नहीं मेरे को ओमेगा 2/ओमेगा 4 निकाल, ठीक है। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो आई आई, है ना, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, क्या बोला था, 2 4, ये 2 आ गया, 4 आ गया, ये 4 का 4 का,
है ना। 4 का 4, अब बाय डिफॉल्ट 1 आया और ये 2 को करेंगे, बाय डिफॉल्ट 1 आया, 2 को 2 करेंगे, बस हो गया, है ना। सेम थिंग्स यू विल बी गेटिंग, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, ये और वाला यूज करो या ये यूज करो, बोथ से। हमें ओमेगा 2 दे रखा है, हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर। ये कौन सा इंस्टेंटेनियस सेंटर है, ये वाला 1 और 2 से मिलके बन रहा है ना, दिस पॉइंट 1 2, छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में, I 2 3, बिटवीन 2 and 3, दिस इज पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमें, दिस इज आवर पॉइंट व्हाट, I 3 4, दिस इज आवर पॉइंट I 1 4, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 1 2 से लेकर 2 4 का डिस्टेंस, 1 2 तो है, 2 4 का है, गायब है, कोई बात नहीं, तो इसको लाना पड़ेगा, ठीक है। सेम वे व्हाट वी हैड डन अर्लियर, ठीक है। कैसे लाएंगे, 1 करेंगे 1, ठीक है, लिंक 1 को पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, लिंक 2 को पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, लिंक 3 को पॉइंट से रिप्रेजेंट, लिंक 4 को विल रिप्रेजेंट विद 4। नाउ वी विल कनेक्ट 1 से 2, 1 से 2 क्या हो गया, I12 हो गया, दिस इज इंस्टेंटेनियस पॉइंट, लिंक बताता है, और लाइन यहाँ पर इंस्टेंटेनियस सेंटर पॉइंट बताता है, ठीक है। जस्ट रिमेम्बर, 2 से 3 गए, ठीक है, 3 से 4 गए, ठीक है, 4 से 1 गए, ठीक है। एक इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 2 ये मिला, है ना, 2 से 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर मिला मेरे को, ठीक है। 2 से 3 मिला, कौन सा, 2 से 3 मिला, 3 से 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर मिला, ये मिला, 1 से 4 1 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर ये मिला, ठीक है। तो ये मेरे पास मिला, लेकिन नंबर ऑफ टोटल हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 4, है ना, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है। तो ये वाला को क्या करेंगे हम लोग, डायगोनल को मिलाए, लाने के लिए 2 4। तो I24 इंस्टेंटेनियस सेंटर किससे किससे मिलकर बन रहा है, एक ऊपर ट्राइंगल, एक लोअर ट्राइंगल, ओके, दिस टू ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल से क्या आ रहा है, ऊपर वाला ट्राइंगल से 1 4 के 1 4 और 1 2, एंड नीचे वाला ट्राइंगल से 2 3, छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में, और 3 4 3 4। करते हैं, ये वाला पहले, 1 4 और 1 2 ढूंढो, 1 4 1 4 एंड 1 2, ओके, 1 4 ये हो गया और 1 2 ये हो गया, यानी ये लाइन का यूज करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। 1 4 1 2, 2 3 3 4, 2 3 2 3 और 3 4, यानी कि ये दोनों लाइन, ये लाइन को यूज करना पड़ेगा, और ये लाइन, ये दोनों लाइन को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि कहीं मैच मीट करे। तो ये तो ऐसे मीट तो करेगा नहीं, ऐसे जाएंगे तो, ओके। तो व्हाट विल डू, we will just extend link 3 like this, and this one, ठीक है, जो कि ये और ये है, ये यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो मिल गया मेरे को, 2 4 आ गया, ये वाला 2 4, ओके, 2 4 आ गया। अब काम बनेगा अपना, ओमेगा 4 हमें निकालना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड ओमेगा 2 हाउ मच गिवन, 1 रेडियन, ओके। 1 2 कहाँ पर है, 1 2 से लेकर
2/4 तक का डिस्टेंस मीन्स दिस डिस्टेंस, ठीक है। हाउ मच गिवन, आई डोंट नो कितना है, I12 से लेकर, ठीक है, चलो मान लेते हैं ये पॉइंट ABCD है ना, ये E हो गया, है ना। तो नाम दे दो 12 से लेकर 24 का, कितना है AE, है ना। 14 to 24, 14 से लेकर 24 का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, है ना। कितना है, हाउ मच इट इज फ्रॉम D से लेकर E तक, ठीक है। ये दोनों पता नहीं, बट इन क्वेश्चन इट इज गिवन हियर कंडीशन, ठीक है। यहाँ से यूज करेंगे ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, this triangle BEA and CED are similar. BEA, triangle BEA and triangle CED, CED, CED क्या है, दोनों का दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल। तो कहना राइट ही, हमें AE अपॉन DE चाहिए, AE यानी ये वाला यूज करो, ये वाला यूज, ठीक है। AE अपॉन व्हाट, DE, है ना। और दे क्या रखा है, AE छोटा वाला है, AE, AE छोटा वाला है, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, DE, है ना। DE क्या BA अपॉन CD यूज कर सकते हैं, छोटा अपॉन बड़ा, ये छोटा अपॉन बड़ा था ना, वैसे ही यहाँ पर हाइट वाला का टर्म में BA अपॉन CD, BA अपॉन ये वाला BA अपॉन CD, ठीक है। यानी ये वाला ही तो दे रखा है यहाँ पर, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन DE इज इक्वल टू BA अपॉन CD, कितना दे रखा है 1.5, है ना। BA अपॉन CD कितना है, AB बोलो अपॉन CD, कितना दे रखा है 1/1.5, ठीक है। तो ये BA अपॉन CD हो गया 1/1.5, ठीक है, इज इक्वल टू कितना करो 10/15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, is 2/3. Now what we will do, we'll put in equation 1 here, put 2 in 1, ठीक है। तो ओमेगा 4 अपॉन 1 इक्वल टू AE अपॉन DE, how much it is 2/3, और ओमेगा 4 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। ये हो गया, तो ये आ गया रेडियन पर सेकेंड में से, 2/3 है क्या आंसर, यस 2/3 आंसर इज वी आर हैविंग, ओके। चलो तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी इज इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2002, ओके। The crank and slotted lever quick return motion mechanism is shown in the figure. The length of the link O1, O2, O1 से this is our O1 and this is our O2. O1C ये लेंथ दे रखा, O1 से O2 का लेंथ कितना दे रखा है 10, दिस इज O1 से C कितना दे रखा, O1 से C ये दे रखा है पूरा का पूरा डिस्टेंस, है ना। हाउ मच 20, ठीक है, सेंटीमीटर में, ओके। O2 से लेकर A तक का दिस डिस्टेंस इज गिवन, ये वाला डिस्टेंस दे रखा है, या यूं कहें दिस डिस्टेंस गिवन इज 5 सेंटीमीटर। क्विक रिटर्न रेशियो ऑफ द मैकेनिज्म इज, देखो कैसे होता है,
मेरे पास एक फिक्स्ड लिंक है, ठीक है, और व्हाट फिक्स्ड लिंक, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, फिक्स्ड लिंक में यहाँ से एक क्रैंक गुजरेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, ठीक है? और यहाँ से एक क्रैंक गुजरेगा जो कि मैक्स 90 डिग्री, एक क्रैंक ऐसे होगा जो कि मैक्स 90 को बोलते हैं क्रैंक, है ना। अब क्या है, यहाँ से ये क्रैंक रोटेट करता है, ये हो गया। अब एक हम लोगों का क्या होगा, स्लॉटेड लीवर होगा, ठीक है। स्लॉटेड लीवर होगा जो कि यहाँ पर एक स्लाइडर से कनेक्ट होगा, स्लाइडर, इसको बोलते हैं स्लॉटेड, यहाँ पर करो स्लॉटेड लीवर, है ना। ये सेम क्रैंक ये यहाँ पर ऐसे रोटेट, कौन सा सेम क्रैंक, दिस वन, ये वाला क्रैंक, तो यहाँ पर था, है ना, ये ऐसे रोटेट, तो एक सर्कल फॉर्म होता है like this, circle will form, okay, now this is rotating like this, how, ये कनेक्ट होता है यहाँ एक रैम से, ठीक है, दिस इज आवर कटिंग स्ट्रोक, cutting stroke, okay, if it is moving back, okay, back, then this is known as return stroke, okay, mainly it is found in the shaper machine, okay. Now it means that this crank is rotating like this with certain angular velocity, okay, so it makes a angle, certain angles, okay, ये 90 डिग्री हुआ, okay, this is our 90 degree, so this 90 degree is known as beta, let's say beta, okay, so it is, this beta is making angles in this direction, कौन सा डायरेक्शन, इस तरीके से बीटा, ओके, क्योंकि एंगल ओमेगा ऐसे क्लॉकवाइज इट इज रोटेटिंग, so angle, this is another angle which is what is our, okay, alpha angle, ठीक, so cutting cube return ratio, cube return ratio is what, cutting angle upon return angle, या time of stroke cutting stroke, time of cutting stroke to time of return stroke, time of return stroke, okay, in the figure कटिंग स्ट्रोक कौन सा है, इस पॉइंट के बाद यानी ए पॉइंट के बाद, ये लेट से दिस इज, ठीक है, ये बी हो गया, ये हो गया सी, ई पॉइंट के बाद
क्रैंक क्या करेगा, ये मैक्सिमम इस पोजीशन पे होगा। जैसे ये ए पॉइंट के बाद फर्दर ऐसे मूव करेगा, ये ये वाला पाथ, यानी कटिंग स्ट्रोक हो, मतलब ये आएगा, ये टूल क्या करेगा, वर्क पीस को कट करेगा, इन द राइट डायरेक्शन। इन द लेफ्ट डायरेक्शन रिटर्न स्ट्रोक मीन्स, सो राइट डायरेक्शन में क्या होगा, बीटा आ रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है। दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर कटिंग स्ट्रोक, कटिंग angle, okay, and this is what, so this is, you can represent like this, okay, if it is like this, cutting, okay, and in the other case let's say this is, okay, this is what, moving here, so this is our what, alpha, means return stroke, return cut, cutting angle, uncut angle, here return angle, return angle, angle, okay, तो कटिंग स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक में क्या होगा एंगल, बीटा, कट कर रहा है ना यहाँ पर, ऐसे जा रहा है, दिस वन, ठीक है, ये एंगल ऐसे जा रहा है, ठीक है, कटिंग, और रिटर्न में क्या हो रहा है, रिटर्न में ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, तो कटिंग स्ट्रोक बीटा, रिटर्न स्ट्रोक इज व्हाट, अल्फा, ठीक, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 360 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, यस, कंप्लीट सर्कल तो 360 डिग्री हो गया, बीटा को, बीटा की जगह वी आर रिप्लेसिंग विथ अल्फा, ओके। नाउ क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोल रहा है, ये लेंथ दे रखा है, मीन्स यदि मैं इसको फेयर करूं थोड़ा सा, इस O2 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये है हमें डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस गिवन इज 10, है ना, और स्लाइडर है, स्लाइडर मतलब ये हो गया, है ना, स्लाइडर का सपोज ये दे रखा है, कुछ लेफ्ट साइड ना दे के राइट साइड दे रखा है, कोई बात नहीं, सी, ये लेंथ कितना दे रखा है, 5, है ना, तो ये वाला, तो ये 90 डिग्री होगा, ओ और सी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये ओ और ये यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर क्रैंक, सेम हियर, दिस इज आवर क्रैंक, सेम, ये क्रैंक हमेशा पोजीशन चेंज कर रहा होता है 360 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया फिक्स्ड लिंक, ओके, सेम हियर लाइक दिस, फिक्स्ड लिंक, ठीक है, और ये क्या हो गया, स्लॉटेड लीवर, स्लॉटेड लीवर, तो ये तो क्रैंक का लेंथ तो हमेशा फिक्स्ड होगा, ओके, एंड दिस 10 इज गिवन, ओके, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, स्लॉटेड का जो लेंथ होता है दैट ओनली वैरी, सो दिस इज गिवन लाइक दिस। नाउ क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ क्या, यस, निकाल सकते हैं, दिस एंगल कैन वी फाइंड आउट, हाँ, ठीक है, दिस इज गिवन इज 5, कहाँ मीट कर रहा है, O1 दे रखा है, ठीक है, ये
है। तो ये O2 दे रखा है, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। बेस दे रखा है और हाइपोटेनियस दे रखा था, कॉस लगाना पड़ेगा। ये एंगल है क्या है, ये तो यही एंगल है ना बी, ये वाला तो ट्राइंगल है बी सी ओ, सेम ट्राइंगल ये बी सी ओ और बी सी ओ, ये तो सेम ट्राइंगल है। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बोथ सेम, तो ये हाफ एंगल ले रहे हैं, दिस इज आवर अल्फा बाय 2, है ना। cos अल्फा बाय 2 इक्वल टू बेस, बेस क्या है 5, हाइपोटेनियस कितना है 10, तो दिस इज आवर 1 बाय 2। ओके, तो cos 1 by 2 how much, 60 degree। ओके, so alpha by 2 is equal to 60 degree, so alpha we are getting is 120। ठीक है, now can I use here, okay, so this 60 minus 120 degree divided by 120 degree, how much we are getting, 3 minus 1 is equal to, this is this 60 degree upon 120 degree minus 1, okay, so 12 3 is 36 minus 1 2, so we are getting 2 value here 2.0, okay, so answer is how much, is how much answer will be our this 2, okay, so in this way you can solve a quick return motion mechanism questions, okay, calculate the quick return ratio, okay, so more parts I am going to cover, okay, from this chapter, okay, chapter is quite long enough, okay, so stay connected and join this channel, okay, so that you'll be able to solve more of the complex type of problems, okay, asked in the GATE engineering service and state level exams, okay, so let's meet in the next classes, okay, thank you all.